अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग व्हेन यू आर ज्वाइन फॉर द पाइपिंग सुपरवाइजर और योर पाइपिंग जूनियर इंजीनियर और योर मैकेनिकल सुपरवाइजर और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, या sometime you are joined as a job performer or anything you want to related to the job performer or that the training has you want to take a permit, then you need to have some information related to this, because whenever you join any new company, that time he is giving you a specific training. After the specific training he take the exam, in that mandatory to pass that exam, because if you are an engineer or supervisor or job performer or PA, some PA and JP, that like the common name of PA and PS, meaning performing authority and performing authority supervisor. So means PA performing authority, PAS performing authority supervisor. Some places the name is JP, job performer. Some places is name is the permit applicant, यानी कि PTW trainer. That type of is a create a exam as per the client or standard. He is making one schedule, he is making already one book type, and that he is giving you a study for 1 or 2 days. After that he is taking a proper exam. So that means you have mandatory to pass that exam, because if you want to take a permit, then you have to knowledge about this and you have to crack this exam, then only you are the authorized for the taking a permit. So today I only giving you the introduction about this, what is the basic introduction about the permit. Then in next video I try to explore explain about more. I try to give you the some some example of the questions, which type of question he is asking about you. Maybe I give you the important question, then you are the prepare, and then anywhere you going for the exam, some of the area is question and answer related to the same, but the sum of the changes. But you have a small knowledge, then he is giving you the training for 2 days, then you easy for the correct the exam. That one is mandatory. If you are a permit supervisor or if you are any job related supervisor like welding, fit up welding or erection, like any work related to the oil and gas refinery, then need to have your proper permit applicant or job performer card, and yeah, PAS or PA supervisor and PA, yani performing authority means you have to knowledge about all those job under your supervision. He is only ongoing of the job. So maybe he is giving you the 2 days training. First day of your some welcome, and उसके बाद basic training. The name is work management system. The name is that here the currently in this location, the name is WMS training. WMS training means work management system, that have a complete work management system, or related to this management you have to do only work. Means according to this training you have to perform the job only, otherwise you have to not do anything above this, because you have a proper training, and after that you certified the training certificate, then only you have to authority to go and take the permit. So this work have a work management system, that is the complete task name. एंड सेकेंड थिंग इज परमिट टू वर्क प्रोसेस, मीन्स प्रोसेस एरिया का आपको जो परमिट चाहिए, जैसे PTW परमिट टू वर्क प्रोसेस, that have the basic detail of the first day. And the job analysis, job safety analysis, this one is giving the first day when you go for the training or any country or anywhere where that type of schedule. And the second day he is giving you the detail about energy isolation, temporary defeat, means temporary means some of the challenges at site, and some of the operations detail, and course evaluation, feedback and closing. That is the basic detail he is giving you the training. And then after this training he is taking an exam. If you are a certified, means if you have a 100 number question, then must be have a 80 number, and more than 80 number, then only you are certified. So I give you a small detail about what is the basic WMS framework. WMS means work management system. ये work management system कि if you are a eligible for this exam, if you are giving this exam, then you have to cross this 80% of the number, then you are the certified job performer. So this is work management system is safety tools. Work management system क्या है? एक safety tools है to ensure that the work is properly controlled. मतलब वर्क को properly कंट्रोल करने के लिए एक बंदा होना चाहिए जो इंश्योर करता है कि हमारा वर्क जो है properly कंट्रोल में है, तो उसको हम लोग वर्कमैन
वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और उसको पूरी डिटेल बताते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज द सेफ्टी टूल टू इंश्योर द वर्क इज फुल्ली और प्रॉपरली कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेटेड। मतलब अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो फुल्ली कंट्रोल है, कम्युनिकेटेड है एक दूसरे से कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है, और प्रॉपरली कंट्रोल है। मतलब हम जब उसको जो चाहे कर सकते हैं, स्टॉप करना है, ओपन करना है, वर्क इमीडिएटली स्टॉप करना है या वर्क को कंटिन्यू करना है। इंक्लूड द फॉर्मल रिस्क असेसमेंट मीन्स एनर्जी आइसोलेशन। जब आप जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे कोई भी जॉब करने से पहले, उस एरिया में अगर कोई एनर्जी है, एनर्जी मतलब सपोज कीजिए लाइन अगर प्रोसेस में है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर कोई भी किसी भी टाइप का एनर्जी है, तो उसको आइसोलेट करेंगे। परमिट टू वर्क, अगर आपके पास परमिट है तो ही आप उसमें एक्टिविटी करेंगे। टेम्पोरी डिफीट मीन्स सनलाइट है या कोल्ड वेदर है या विंड स्पीड है, मतलब एक ही एरिया में दो एक्टिविटी चल रही है, शायद सेम एरिया में आपके इसका फोल्डिंग एक्टिविटी, वेल्डिंग एक्टिविटी, फिटअप एक्टिविटी है, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिटेल फॉर द वर्क मैनेजमेंट वर्क WMS ट्रेनिंग। की ऑब्जेक्टिव दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोग ये जो ट्रेनिंग हम लोगों को क्यों दिया जाता है, या हमारा जो भी फोरमैन है, सुपरवाइजर है या जॉब परफॉर्मर है, इसको ये ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है। वन सेट ऑफ सिस्टम टू द प्रोसीजर, ये हमारे क्लाइंट का प्रोसीजर है जो कंपनी ग्रुप में कंपनी के एक बनाया हुआ प्रोसीजर है, और ये मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी को, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपको कैसे कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के इसमें लेसन लर्न है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन भी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमको कैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन करना है। इंक्रीज द एबिलिटी टू कोर पर्सन ऑफ द मतलब एबिलिटी को इंक्रीज करता है कि एक जॉब परफॉर्मर जो है उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे कि वो एक कोर परफॉर्मर हो गया कि हमारा जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो दिस टाइप का इसमें बेसिक डिटेल है। आप कभी भी जाएंगे तो आपको ये ट्रेनिंग करना होगा। तो उस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग के बाद जो आपका एग्ज़ाम लेगा ना, वो एग्ज़ाम आपको मैंडेटरी पास होना पड़ेगा बस। तो बेसिकली WMS को यहाँ पे इस डिटेल के अकॉर्डिंग वर्क मैनेजमेंट सिस्टम को 8 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया। WMS है 8 स्टेप, मतलब 8 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क का रिक्वेस्ट करना है, उसका प्लानिंग करना है, वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग। सेकेंड है वर्क साइट कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वर्क साइट को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तीसरा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, कंट्रोल एंड कमेंट्स विथ वर्क, मतलब कम्युनिकेट, कंट्रोल एंड कमेंट्स विथ वर्क। फोर्थ नंबर है वर्क हैंडओवर, सस्पेंशन और एक्सटेंशन, मतलब ये वर्क को हैंडओवर करना, उसको सस्पेंशन करना, उसको एक्सटेंशन करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड अप्रूव कंट्रोल, मतलब कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसका आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रूव और कंट्रोल लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसका ऑथोराइज्ड वर्क परमिट, जो बंदा ऑथोराइज्ड है, मतलब जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम उसके बाद हमारा क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम, तो मैं ऑथोराइज्ड हूँ परमिट लेने के लिए। तो अगर आपके पास ऑथोराइज्ड परमिट एप्लीकेंट है या फिर जॉब परफॉर्मर है तो वही बंदा ले सकता है। तो ऑथोराइज्ड वर्क परमिट, उसके बाद डायनेमिक रिस्क असेसमेंट। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट मतलब जो जॉब की एक्टिविटी हो रही है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, रिस्क असेसमेंट है, उसका डिटेल है। परमिट क्लोजर एंड हैंडओवर, मतलब जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, हम होता है तो आपको कैसे परमिट क्लोज करना है, उसको हैंडओवर कैसे। तो ये WMS कंपोनेंट को, WMS को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक्टिविटी मैंने आपको बताया, दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द WMS।